हेलो। यस मैम। स्क्रीन दिख रहा है ना? यस मैम। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, so this is the next lecture on your pavement design. Okay, so let us start. So this is our pavement design lecture. Okay, as I said, there are several methods for designing the pavement. Here we are dealing with design means what? We have to determine one parameter. Okay, and here in this case the parameter that we will determine or we will design is the thickness of the pavement, that will be thickness of the total pavement layers as well as individual layers. Okay, and this method is for your group index method. We will learn group index method. Okay, and this is for your designing flexible pavement. As I said, there are two types of pavement: rigid pavement and flexible pavement. Okay, so first we will learn flexible pavement thickness design. This is one method for designing flexible pavement. Okay, there are other methods also we will discuss in our later classes. So here what we will learn, first we will learn the definition. What do you understand by the group index? Okay, why is it important in pavement design? On which factors it depends, rather we can say on which parameters it depends. Okay, and based on the group index methods, there are two methods. First is mathematically we will try to solve or we will try to design the flexible pavement, and there is one graphical method also. Okay, under this group index method. Based on these two methods, we will discuss one numerical also. Okay. So definition is what? This is basically a number, okay, an integer which will define the property, which is defined by the property of the soil. Mainly here soil means what? Fine grade soil, okay. And this group index is mainly for determining this. See, this is surface, base course, sub base. Now beneath the sub base, what will be another course? Pavement is what? Pavement is the layer, all this including all these three layers total is known as the pavement. Okay, but below this layer, there's below this surface there is one more layer which is important. Now what was that layer? What is the name of that layer? Surface, base, subbase, then the bottommost layer is known as subgrade. Okay, it is यस मैम। subgrade or foundation. Okay, so the total load over this pavement is basically coming over this. We have to transfer this load to the natural soil beneath. Okay, that means the subgrade will carry the total load. Okay, so we are transferring this wheel load from this layer to this layer, then this layer to ultimately to the subgrade. So we can say, can we say that if the property of subgrade is good, then your pavement will be good? Quality of pavement or functional property of pavement will be good, can we say? Yes, ma'am. Because it is acting like a foundation. If the foundation of the structure is good, that means it will carry huge amount of load without any failure. Okay, and for it will be its longevity will also be extended. Okay, otherwise what happens within 1 year, if the subgrade material that you are using is of poor quality, then what happens? Because of the traffic load, repetition of traffic load. Okay, this design period is for your minimum 10 years. So for 10 years, it has to sustain that traffic load, repetition of traffic load. If your the subgrade material or the subgrade or the soil which are using for the subgrade construction of subgrade layer is of poor quality, then what happens? It will start to get distressed, right? It will start to get failure. So failure will occur soon.
So we can say that the pavement thickness, or we can say the structure of the pavement is dependent upon the property of the subgrade also. And this group index will help us to evaluate or assess the property of the soil which is used in the subgrade. Okay. So see here, group index is a number which is assigned to the fine grain soil. As I said, in subgrade, what we are doing, we are compacting the fine grain soil. Okay, we are compacting and forming a layer foundation of the subgrade. Now it classifies the fine grain soil into different groups also. Okay, see, it evaluates the quality of the soil as a highway subgrade material. So in the subgrade material, the soil that we are using, the quality of that soil can be evaluated with the help of this, sorry, it will be group index. Okay. Now, as I said, it is dependent on several factors. Okay. Or we can say how we will derive this group index. There is one formula. Okay. In this formula, there are different parameters, and these are those parameters. So, which parameter must be known in order to determine this group index. कोई Okay. ज्वाइन नहीं हो पा रहा हाँ? है ग्रुप में रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई ज्वाइन नहीं हो पा रहा है. Okay. Okay. Okay, so actually this is your group index. ओके मैम. Sorry, ये होगा तुम्हारा group index होगा. Okay, this one. Now, so it is dependent on what? See, percentage of the soil passing the sieve number 200, or we can say this sieve number 200 is nothing but the 75 micron or 0.07 mm sieve size. Okay. So we need this value, which is denoted by, see, this is the percentage finer than 200 sieve size, sieve number. Okay, that's why it is written as F200. Okay, percentage of the soil finer than sieve number 200. Okay, and another term which is required is liquid limit and plasticity index. Plasticity index, we know formula what? Liquid limit minus plastic limit. Okay, this is the formula. We have to remember these three terms. Okay. Okay, so what is the formula? Okay, before going to the formula, let us see what is the value of the group index. कि मतलब कि ये group index का value कहाँ से लेकर कहाँ तक? What is the range of the values? Okay, so this is the range of the value. It lies, its group index का value कहाँ से कहाँ तक होता है? Minimum is 0 and maximum is 20. It must lie between this value. Okay. Now 0, if the group index value is towards 0, मतलब ये बहुत less amount है अगर group index का value, then what is the property of the soil? Or if it is towards 20, मतलब 18, 19 ऐसा अगर हुआ, then soil property will be, what is the soil property? We will see that if it is towards 0, it is good quality of the soil, and if it is towards 20, it is very poor quality of the soil. Okay, say for example, if your group index value is 1, that means it is lying between this range 0 to 1, so this is good soil. Okay, and if your group index value suppose lies between 5 to 9, it is poor soil, and if it lies between 10 to 20, it is very poor soil. See, with the increment, the property of the soil is reducing. Okay, so can we say, can anyone say that for good soil, if your subgrade or the soil which is used in subgrade is a group index suppose is 0.5, okay, then, and another sample, okay, another pavement we have constructed with the soil subgrade of, say for example, with having a GI value of 15, ठीक है, एक का है 0.5 GI, एक का है 15. अब बोलो दोनों में से किसका थिकनेस ज्यादा होगा? ठीक है, अनिमेश वाज कंस्ट्रक्टिंग वन रोड, ओके, जिसका सबग्रेड में जो सॉइल यूज कर रहे उसका GI है 0.5, एंड अंकुश इज कंस्ट्रक्टिंग वन रोड ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट, ओके, जिसका सबग्रेड का जो सॉइल है उसका GI है 15. अब बोलो अंकुश जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसका थिकनेस ज्यादा होगा ना कि अनिमेश जो कंस्ट्रक्ट कर रहा है उसका थिकनेस ज्यादा होगा?
ज्यादा देना चाहिए। किसका लेसर हाइट होगा, लेसर पेवमेंट थिकनेस होगा, किसका ग्रेटर पेवमेंट थिकनेस होगा? कैन एनीवन? देखो 50 का 50 पहले हाई देखो, होगा। पहले है ग्रुप इंडेक्स टेक कंसीडर फॉर अनिमेस, ओके, जिसका ग्रुप इंडेक्स कितना था 0.5, मतलब कि उसका सॉइल कैसा है, उसका नेचर सॉइल इट इज वेरी गुड, राइट, मतलब कि वो प्रॉपर्टी सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी या जो भी बोलो उसका स्ट्रेंथ बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, तो हमको वहां पे पेवमेंट थिकनेस कम देने से चले, इज इट ओके, मतलब कम देना चाहिए ना कि ज्यादा देना चाहिए? कम देना चाहिए। कम कम देने, है। हाँ यस, कम देने से भी चलेगा, क्योंकि द लोड विच इज ट्रांसफर टू द नेचुरल सॉइल, ठीक है, जितना भी तुम लोड ट्रांसफर करोगे उसका तो क्वालिटी बहुत अच्छा है, वो ले लेगा, ओके, इट विल टैकल इजीली। लेकिन अंकुश जो डिजाइन कर रहा है उसका 15 जिया है, मतलब उसका प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल इज वेरी लेस, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि वो जब भी सॉइल इस तरफ नीचे आएगा, से फॉर एग्जांपल अर्थ, तुम्हारा पेवमेंट का काम ही क्या है, टू ट्रांसफर द लोड टू द वाइडर एरिया, ठीक है, यहाँ से जो लोड आ रहा है इसको ट्रांसफर करना है टू द वाइडर एरिया, राइट। अब जैसे जितना ये थिकनेस बढ़ेगा ये वाइडर एरिया बढ़ता जाएगा नीचे ही, सपोज दिस इज सब ग्रेड, ओके, तो जितना ये थिकनेस ज्यादा रहेगा तो ये क्या होगा, ये ज्यादा एरिया में स्प्रेड होता होता जाएगा, ठीक है। अगर ये ऐसा 3 2 लेयर को लेकर ही होता तो क्या होता, सपोज दिस इज पी लोड, ओके, दिस इज अ लोड, देन यहाँ पे क्या है देखो, ये द एरिया where this load has been spread is very less compared to this one, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया कम होगा मतलब क्या होगा, प्रेशर विल बी हाई और लेस, बोलो किसमें ज्यादा होगा प्रेशर? एक ये है, ठीक है। अब बोलो इस वाले में तुम्हारा प्रेशर ज्यादा लग रहा है ना कि इस वाले में प्रेशर ज्यादा लग रहा है? हियर इट इज द सबग्रेड, सेकंड वाला, প্রেসার বেশি। ऊपर ऊपर ये फर्स्ट है वाला। फर्स्ट है, ये सपोज सेकंड है, हाँ फर्स्ट ठीक वाला। है। फर्स्ट में प्रेशर ज्यादा लग रहा है, प्रेशर इज नो गोज मैम, टू व्हाट, सेकंड में होगा। सेकंड सेकंड में सेकंड ज्यादा फर्स्ट होगा। कम, ज्यादा फर्स्ट है। कम है। सेम लोड है, लोड पर यूनिट एरिया इज प्रेशर, राइट, तो प्रेशर इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। अगर एरिया वाइडर एरिया है, मतलब यहाँ पे 10 स्टूडेंट था, यहाँ पे 5 स्टूडेंट था, लोड एक ही लोड आ रहा है, तो किसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है, जो 5 स्टूडेंट है उनके ऊपर ही ज्यादा स्ट्रेस लगेगा, राइट, तो 10 यस स्टूडेंट्स है मैम। यहाँ पे, तो उन लोग का इंडिविजुअल स्ट्रेस विल बी वेरी लेस। तो सिमिलरली ऐसा वाला केस कब होगा, व्हेन दिस, मतलब ये सॉइल का प्रॉपर्टी अगर पुअर होगा तब हम लोग का थिकनेस भी बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि इसके ऊपर जो भी प्रेशर आएगा वो कम आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कंडीशन है तो ये वाला पेवमेंट का क्वालिटी शुड बी गुड, मतलब कि सबग्रेड का जो भी सॉइल यूज कर रहे हैं इट शुड बी गुड इन नेचर, ठीक है। तो हम बोले थे जिसका गुड होता है उसका जीआई विल बी वेरी लेस, एंड जिसका बैड होता है उसका जीआई विल बी वेरी हाई। तो ये अंकुश का हुआ और ये अनिमेश का हुआ, ओके, क्लियर, ओके। तो देखो गुड सॉइल के लिए है लेसर पेवमेंट थिकनेस, ठीक है, एंड वेरी पुअर सॉइल के लिए हायर पेवमेंट थिकनेस, ओके। मैम कोई ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। टाइम से ज्वाइन नहीं करते तो कैसे होगा? See, so for good soil it is lesser pavement thickness and for poor soil हमको ज्यादा थिकनेस देना चाहिए, क्योंकि उसका जो स्ट्रेस लेने का कैपेसिटी इट विल बी रिड्यूस्ड, ओके। तो रिड्यूस हो जाने के लिए वी हैव टू स्प्रेड द लोड इनटू वाइडर एरिया। वाइडर एरिया में जब भी होता है जब ज्यादा लेयर्स हम देते हैं, ज्यादा लेयर्स का मतलब है पेवमेंट थिकनेस भी बढ़ा दे रहे हैं, ओके। तो now comes the group index method, क्या क्या है, एज ऐसे देयर आर मैथमेटिकली हम लोग हो सकता है, दूसरा ग्राफिकली भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ओके। सो मैथमेटिकल का एक्चुअली दिस इज द फॉर्मूला, अभी ये थोड़ा देख लो सिर्फ, नो नीड टू
मेमोराइज, ओके। बाद में हम जब सॉल्व करेंगे देन हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सी GI इज 0.2a प्लस 0.05 AC प्लस 0.01 BD, ओके। इसका रेंज कितना होना चाहिए था? एज आई सेड इट शुड लाइज बिटवीन 0 to 20। ए क्या है? ए इज, ये वाला देख लो, ये फॉर्मूला भी याद रखना है, लेकिन क्या है आई विल एक्सप्लेन। ए का रेंज शुड बी बिटवीन 0 to 40, बी का रेंज शुड बी बिटवीन 0 to 40, ओके। ऑल दीज आर द परसेंटेज, ओके। ए बी सी जो भी है ये परसेंटेज में ही होगा। यस मैम। C is 0 to 20, D is 0 to 20, ये है, ओके। whereas ग्राफिकल का ऐसा होता है, we have to use this graph, ये वाला ग्राफ, वो भी हम दिखाएंगे, ओके। नाउ मैथमेटिकल में आते हैं। सी दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला, ओके। अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला तुम लोग नोट डाउन करो, प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला। 0.2a plus 0.005 AC plus 0.01 BD, okay. Now what is A? See, A is that portion of the material, मतलब यहाँ पे क्या मटेरियल है? दिस इज फाइन सॉइल, जो सॉइल्स के ऊपर हम लोग GI निकाल रहे, इसका GI निकाल रहे, ग्रुप इंडेक्स निकाल रहे, दैट इज द सॉइल ओनली। सो दैट पोर्शन ऑफ द मटेरियल और दैट पोर्शन ऑफ द सॉइल, ओके, पासिंग दिस मच माइक्रो मिलीमीटर सिव, ओके। और ये वाला मिलीमीटर सिव हम इसको बोलते थे IS कितना था तुम्हारा? सिव साइज नंबर इज 200, ओके। सो पासिंग सिव साइज नंबर 200 और 0.075 मिलीमीटर भी बोल सकते हैं, या 0.75 माइक्रोन भी बोल सकते हैं, ओके, क्वेश्चन में। सो दैट पोर्शन ऑफ द मटेरियल पासिंग दिस वन सिव, ओके, एंड इसका वैल्यू कहाँ पे कहाँ तक होना चाहिए? इट शुड बी ग्रेटर देन 35% एंड लेसर देन 75%, ओके। मतलब ये 35 से 75 के बीच में रेंज करना चाहिए। B is what? Similarly, the same वही है, it is the portion of the material passing this much sieve, लेकिन इसका रेंज ये है 15% to 35%, ओके। C is क्या? It is the liquid limit ranging between 40 to 60, ये है। And D is what? Plasticity index ranging between 10 to 30%, ये नोट डाउन करना है, ओके। तो फॉर्मूला क्या बोले थे हम लोग? फॉर्मूला देखो, ए का क्या है? मिनिमम कितना है? 35 है, ओके। एंड इट इज व्हाट? दिस इज अ पोर्शन ऑफ द मटेरियल पासिंग 0.075, हम लोग पहले उसमें एक्सप्लेन किए थे, इसको हम लोग डिनोट कर सकते बाय, सिंस दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? दिस इज नंबर सिव नंबर 200, ओके, एंड दिस इज द परसेंटेज फाइनर। सो यहाँ पे हम लोग इसको डिनोट किए फाइनर 200, मतलब 200 जो सिव है उससे जो फाइनर पार्टिकल्स है उसका परसेंटेज, ओके, दैट्स व्हाई F200, ये A, ओके। नाउ इसका इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 35, तो इसका मिनिमम रेंज कितना है? 35, तो यहाँ पे -35 कर दो, ओके। B इज व्हाट? सेम पासिंग, ये क्या? मटेरियल पासिंग 0.075 माइक्रोन सिव, तो इसका मतलब है F200 नॉट ग्रेटर देन 15, तो -15, ओके। C क्या था? लिक्विड लिमिट, सो LL, ओके, ग्रेटर देन 40, मतलब इससे ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, सो -40। सो ऑल दीज आर द लिमिट, लोअर लिमिट्स, ओके। एंड D इज व्हाट? प्लास्टिसिटी इंडेक्स -10। तो ये वाला फॉर्मूला तुम लोग नोट डाउन कर सकते हो अभी, दिस एंड दिस, प्लीज नोट डाउन कर लिया। तो देखो इसका रेंज हम बोले थे कितना होना चाहिए था? रेंज अब ये बोला देखो 35 से 75 है, तो माइनस कर दो, कितना आएगा? 40। सो रेंज बिटवीन, इट शुड वैल्यू कितना से कितना होना चाहिए? 0 से 40 में आना चाहिए। जो भी कैलकुलेट करेंगे इट शुड राइज बिटवीन 0 to 40। सिमिलरली इन दोनों का रेंज देखो 15 से 35, मतलब कितना होगा? 35 - 15, अच्छा ये वाला थोड़ा गलत है, ओके। यहाँ पे शायद 735 नहीं होगा, यहाँ पे तुम्हारा होना चाहिए 665 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कर दो, ऐड कर दो, 15 + 40 कितना होगा? कितना होना चाहिए बोलो तो? यहाँ पे गलत है। एनीवन? कर रहे हैं। अब ये वाला देखो, इसका रेंज कितना है? 20 है, 40 से 60 है तो 20, सो 0 से 20 में रहेगा। सिमिलरली ये कितना होगा? 10 से 30, तो रेंज विल बी बिटवीन 0 to 20, ओके। यस मैम। ये 55 होना चाहिए ना ये वाला, ठीक है? ये यस 55, मैम। हाँ यस मैम, वो 35 है, 55 होगा। हाँ हाँ, ठीक है। अब देखो
एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है, ए बी सी डी निकालने का एग्जांपल करते हैं। सपोज परसेंटेज पासिंग सिव नंबर ये बोला है, और दिस वन दिस, ये परसेंटेज पासिंग कितना है बोला है, अगर दिया रहेगा मतलब F200 का वैल्यू अगर दिया रहेगा, देन हाउ टू कैलकुलेट, या कैसे कैलकुलेट करेंगे ए का वैल्यू। ओके, सपोज दिस इज एन एग्जांपल, लिख लो F200 इज 80%, ओके, एंड दीज आर द वैल्यूज। तो हमको ए निकालने बोला, सो वी हैव टू यूज दिस फार्मूला। अब ये फार्मूला निकाल के ए का वैल्यू देखो तो क्या आ रहा है, मतलब ये क्या होगा, 80 माइनस 35 होगा। व्हाट इज द वैल्यू, बोलो, ऐसे मुख में तो आ जाएगा। 80 माइनस 30, ये F200 कितना है, F200 इज 80% बोल दिया है। सो व्हाट इज ए वैल्यू, 45, राइट। क्या हुआ, 45 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस मैम। यस मैम। तो बोलो अगेन, सी इसका हम बोले थे ए शुड लाई बिटवीन 0 to 40, ठीक है, लेकिन इसका आंसर आ रहा है कितना, 45। तो इसका लेकिन ए का मैक्सिमम कितना है, 40। सो ए का वैल्यू क्या होगा, 40। 40। ओके, 40 लेना पड़ेगा क्योंकि उसका Yes, मैक्सिमम लिमिट ही 40 है, राइट। अब Yes, दूसरा ma'am. एग्जांपल देखो, इसका निकालो, इसका क्या होगा, अगर F200 मतलब परसेंटेज पासिंग 0.075 mm इज 75, कैलकुलेट ए। 40 होगा मैम। 40 होगा। ओके, ठीक है, तो मतलब हम 40 ले सकते हैं। इसका अगर 200 है तो ये वैल्यू अगर 20 है तो F200 का 20 है तो निकालो। মাইনাসে আসবে তো, মাইনাস है তাহলে মিনিমাম কত, -15। जीरो। मिनिमम 0। मिनिमम 0 है, राइट, तो उसको हम लोग 0 ही लेंगे, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे 0 होगा, ओके, कैलकुलेशन दिस विल बी 0, ओके। अब सिमिलरली बी का निकालते हैं। अच्छा, और एक एग्जांपल देखते हैं, ओके, ए का 35 का निकालो तो 0। 0, ओके। 60 का 25। वेरी गुड, ओके है, ठीक है। अब आते हैं बी का, अगर निकालने के लिए बोला है तो सिमिलरली बी के लिए कौन सा फॉर्मूला, दिस वाला, राइट। तो इसका निकालो, 45, लेकिन द मैक्सिमम वैल्यू इज हाउ मच, 40। सो द करेक्ट कितना होना चाहिए, ए बी का वैल्यू 40, ओके। सिमिलरली इसका भी निकालेंगे तो वही होगा, सेम प्रोसेस, ओके। इन दोनों के रेंज में होगा तो वी विल टेक दैट वैल्यू ओनली। वैसे तुम्हारा अगर हाँ -5 आया तो क्या होगा, 0 लेना, क्योंकि मिनिमम इज 0, राइट। अब देखो यहाँ पे 15 आ रहा है, सो इट इज लाइंग बिटवीन दिस रेंज, सो वी हैव टू टेक बी इज 15 ओनली, ओके। सिमिलरली सी का भी वैसा ही करते हैं, 70 दिया है, ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे, देखो ये 30 आ रहा है, विच ये लाई शुड लाई बिटवीन 20, सो टेक सी इज 20, मैक्सिमम जो वैल्यू है वो ले लो, ठीक है। सिमिलरली ऐसे करना है, आई थिंक दिस इज क्लियर, ठीक है। यस मैम। अब यस मैम। डी का भी वही है, सेम प्रोसेस, ओके, चेक करते जाना है। नाउ व्हाट इज द लिमिटेशन, यहाँ पे लिमिटेशन क्या है कि हमको वी आर ओनली डीलिंग विद द क्वालिटी ऑफ द सबग्रेड ओनली, मतलब सबग्रेड का सॉइल का क्वालिटी क्या है वो उसके ऊपर से डिपेंड करके हम लोग ये थिकनेस डिजाइन करने वाले हैं, लेकिन बट इज इट सो कि सिर्फ सबग्रेड का ही क्वालिटी हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा, नो मैम। नहीं, बिकॉज इंडिविजुअल लेयर का भी हम लोग को क्वालिटी जानना है, राइट। वी हैव टू अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल लेयर भी, क्योंकि इंडिविजुअल लेयर भी डिफरेंट मटेरियल से बनना है, उनका भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, राइट।
उनका भी डिफरेंट स्ट्रेंथ है, सो वी कांट से दैट कि सिर्फ हम लोग सॉइल का जो भी है सबरेट का उसके ऊपर ही डिपेंड करके अपना ये जो थिकनेस डिजाइन कर रहे हैं. सो दैट इज वन ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड. ओके, सो GI value does not give us idea about the quality of the pavement material. As I said, pavement किसको बोलते हैं? सबग्रेड के ऊपर, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ सबग्रेड के ऊपर ही सबग्रेड का ही प्रॉपर्टी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं. ओके, सो ये एक लिमिटेशन है. अब दूसरा क्या है कि नोट डाउन. ओके, ये नोट करना है कि टोटल थिकनेस अगर हमको बोलेगा निकालो तो सिर्फ GI से हो जाएगा. ठीक है, ओनली अगर तुमको सिर्फ GI का वैल्यू पता है देन वी कैन ओनली डिटरमाइन टोटल थिकनेस. लेकिन अगर हमको इंडिविजुअल थिकनेस चाहिए, ईच लेयर की इंडिविजुअल थिकनेस चाहिए, देन वी हैव टू यूज GI एज वेल एज ट्रैफिक वॉल्यूम. मतलब कि ये वाला जो ग्राफिकल मेथड में आ जाता है, मतलब कि तुम्हारा प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल भी पता रहना चाहिए. ओके, और कितना नंबर ऑफ व्हीकल्स आ रहा है उसके ऊपर वो भी हमको पता रहना चाहिए, वेदर इट इज हेवी ट्रैफिक या लो वॉल्यूम ट्रैफिक या लाइट वॉल्यूम ट्रैफिक, मतलब मीडियम, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है इंडिविजुअल थिकनेस. ओके, वो हम लोग देखेंगे पहले. नाउ लेट अस सॉल्व वन प्रॉब्लम. दिस इज योर मैथमेटिकल, मतलब जी सिर्फ फॉर्मूला यूज करेंगे और जो टोटल थिकनेस सिर्फ निकालेंगे. ओके, नो नीड टू डिटरमाइन इंडिविजुअल थिकनेस, मतलब सरफेस, सब बेस, बेस इस सब का नहीं चाहिए, ओनली टोटल थिकनेस हमको चाहिए. ओके, so these are the conditions. Okay, the soil subgrade has the following data. ये दिया है, देखो soil portion passing 75 micron sieve is this much. Now what is this value? ये क्या वैल्यू दिया है? 60%. F200. F200, yes. F200. Liquid limit, plastic limit दे दिया है. ओके, नाउ बोला है फाइंड आउट द थिकनेस ऑफ द पेवमेंट. एज आई सेड, ये नोट के लिए देखो, थिकनेस ऑफ द पेवमेंट के लिए क्या चाहिए हमको? GI चाहिए. तो पहले GI निकालना है. अगेन GI का फॉर्मूला में क्या क्या था? ABCD था, तो ABCD हमको निकालना है. ओके, अब ये वाला ग्राफ तुमको, सॉरी टेबल तुमको दिया है. सी, विथ रेस्पेक्ट टू GI थिकनेस इज वेरिंग. जैसे जैसे हम बोले 0 की तरफ जाएगा ये थिकनेस विल बी लेस, जैसे 20 की तरफ जाएगा थिकनेस विल बी मोर. तो देखो ये थिकनेस इंक्रीज होता जा रहा है. ये वाला हमको बाद में यूज करेंगे, पहले GI निकालो. तो GI निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? ये वाला टेबल तो हमको रहना चाहिए. ओके, एंड दीज आर द डाटा दैट आर प्रोवाइडेड. ओके, अब यहाँ पे Yes, देखो, इन ऑर्डर टू, यहाँ पे देखो ये वाला क्या चाहिए था? A के लिए F200 गिवन, B के लिए भी F200 गिवन. ओके, C के लिए LL लिक्विड लिमिट गिवन. अब D के लिए क्या है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स. बट व्हाट दे हैव गिवन? दे आर गिवन प्लास्टिक लिमिट. तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था? लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट. तो पहले PI निकाल लो. ओके, सो 45 माइनस 20, 25%. अब देखो PI भी तुमको मिल गया. नाउ जस्ट पुट दिस वैल्यूज एंड फाइंड. पहले ABCD निकालो, कितना आ रहा है? ये फॉर्मूला है, ये रेंज है. नाउ फाइंड ABCD. निकाल पाओगे? प्रीवियस Yes, छोटा ma'am. छोटा एग्जाम, Yes, ma'am. निकालो. ABCD निकालो. देखो इन MCQs दे विल आइदर आस्क यू, दे विल नॉट आस्क, ये वाला MCQs में भी आ सकता है. ओके, दे विल आस्क यू टू ओनली सिंपली कैलकुलेट GI. यही कैलकुलेट करने के लिए बोल देगा. Ma'am, A equal to 25, A equals to 25. Very good. B equal to 45, হ্যাঁ ম্যাম বিটা 45 Ma'am, C equal to 45. 20. A Yes, ma'am. equals to 45, but it B should be 40. lying between 0 to 40. Yes, ma'am. Yes, ma'am. equal to 40 है. हाँ, B equals to 40. हाँ, पहले वाला 25 फिर 40. Ma'am, C equal to 25, but it lie in 20. ना मैं 5, C equal to 5. कैसे 25 आ रहा है? C equal to 5. नो मैम C equal to 5 लिक्विड Five, लिमिट five, माइनस 40, तो 45 5 होगा, माइनस C 5. 45. हाँ, ओनली 5. D क्या है? এই তুমি যে বলছো 45 না কি বললে ওটা ঠিক করো, ঠিক আছে? Ma'am, 40. Oh, লিকুইড sorry. फिर 40
40 आ रहा है। yes मैम हम्म। 45 अब डी डी में टा तो मैम 10। डी 10 होगा। प्लास्टिसिटी इंडेक्स है, 10 कैसे हो रहा है? प्लास्टिसिटी इंडेक्स क्या है? मैम 5 5 25 minus 20 25 15 माइनस 10, 15 तो मैम 20 लो ना, 20 10 yes मैम 20 15 फाइव 20 था, 15 10 होगा था तो 15 10 था 15 होगा तो डी का। हाँ डी का 15 okay होगा। मैम then 10 it is डी का 15। अरे कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ये देखो, ये फॉर्मूला में मैम क्या है, वैल्यू फॉर्मूला यहाँ पे दिया है नोट ना। डाउन पड़ेगा ये मैम। तो डी का ठीक है, डी का है 15। नाउ कैलकुलेट जी आई, जी आई का ये फॉर्मूला है, बिठा दो। क्या क्या दिया है देखो, दिस आर द वैल्यूज, जी आई इक्वल टू 0.2 है। 25 40 5 15। मैम ये क्या सबमिट करना पड़ेगा नहीं? नहीं, ओके। जीरो पॉइंट टू इंटू कितना आ रहा है? 11 पॉइंट समथिंग आ रहा है। अच्छा, रिमेंबर दिस ए विल बी 25 ओनली, ओके, सी विल बी 5 ओनली, डी विल बी 40, ऐसे पुट करना है, मतलब परसेंटेज को डेसिमल में नहीं करना है, ओके, एज इट इज पुट कर देना, मैग्नीट्यूड। मैम 11.625। यस, सो जी आई इज 11.625। 11.2625। ठीक है, क्लियर, ओके। अब आते हैं कि क्या दिया है तुमको, एक टेबल दिया था, याद है? ये वाला टेबल क्वेश्चन में दिया था, याद है? ठीक, जी आई का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक रेंज है, थिकनेस है यहाँ से यहाँ के। अब इन इसमें से क्या ये 11.625 आ रहा है, दिया है टेबल में? टेबल में क्या मिल तुमको 11.625 का वैल्यू दिया है कि उसके लिए? नो। सो नो व्हाट वी मैम हैव नो। टू डू, वी हैव टू इंटरपोलेट, ओके। अब इंटरपोलेट किसके बीच में? इन दोनों के बीच में हमको इंटरपोलेट करना है। देखो जी आई का वैल्यू कहाँ से कहाँ पे लाई करता है, ये 5, ओ सॉरी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी, तो फिर तो गलत हो जाएगा मेरा आंसर, यहाँ से यहाँ पे होना चाहिए। 15 के अंदर अच्छा, यहाँ से यहाँ पे होना चाहिए, राइट, क्लियर, ठीक है। अब इंटरपोलेशन कैसे करोगे, हाउ टू डू इंटरपोलेशन, आता है? तो इसको बीच में तुम्हारा कहाँ पे है, एक है तुम्हारा जी आई का वैल्यू कहाँ पे रहा है, 10 to 15 के बीच में है, थिकनेस विल बी समवेयर बिटवीन 62 and 70, ठीक है। इसमें से तुम्हारा जी आई का इज नोन वेयर एज थिकनेस इज अननोन, सो वी हैव टू कैलकुलेट थिकनेस, ठीक है। तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये वाला दिया गया है, देखो 10 है इस तरफ है 62, 10 जी आई के लिए थिकनेस कितना था 62, 15 जी आई के लिए थिकनेस कितना था 70। अब 11.625 दिस इज द रिक्वायर्ड, तुम्हारा जब कैलकुलेट किया तो उसका करस्पॉन्डिंग थिकनेस इज व्हाट, दिस इज द रिक्वायर्ड पेवमेंट थिकनेस से, दैट इज टी। अब इंटरपोलेट जब करोगे तो क्या करना पड़ेगा, देखो कोई भी साइड पकड़ लो, ठीक है। सपोज हम लोग 11.625 माइनस 10 अगर करेंगे तो सिमिलरली यहाँ पे भी उस तरफ इक्वल टू करेंगे, फिर इक्वल टू इस तरफ क्या होगा, t माइनस 62, ठीक है, दोनों की तरफ। अब न्यूमरेटर में क्या जाएगा, सॉरी डिनोमिनेटर में जाएगा फिर से 15 माइनस 10, इस तरफ क्या होगा 70 माइनस 62, मतलब 11.625 माइनस 10 बाई 15 माइनस 10 विल गिव यू t माइनस 62 बाई 70 माइनस 62, ऐसे। ये वाला इंटरपोलेशन क्लियर है? ओके यस मैम। देखो 11.625 माइनस 10, ठीक है, तो यहाँ पे भी वही t माइनस 62 है, इसका करस्पॉन्डिंग इज t, 10 का इज 62, फिर नीचे 15 माइनस 10, 15 का करस्पॉन्डिंग थिकनेस इज 70 और 10 का है थिकनेस 62। अब यहाँ पे क्या क्या सभी नोन है, सिर्फ t इज अननोन, सो कैलकुलेट t वैल्यू। t का वैल्यू क्या होगा, कर रहा मैं। कितना आ रहा है, 11.625
So t minus 62 will be this whole thing into 8. 70 minus 62 is 8. Whole thing into 8 करो, ठीक है? Then t will be जो भी आएगा plus 62. मैम 59.4. कैसे 59 आएगा? देखो it should lies between 62 to 70. Right? 59 को उसको ऊपर चला जाएगा. मैम 64.6 आ रहा है। हाँ 64.6. 64.6 हाँ मैम। देखो ये पूरा फैक्टर है, ये वाला इंटू ये वाला कर दो, दिस इज 8 और ये माइनस का इस तरफ जाके प्लस हो जाएगा। सो 64.6 सबका ये आया वैल्यू। ओके देन अब सिंपल ये वाला का सिंपल जीआई निकालो, तो सिंपल जीआई निकालो, सब दे दिया तुमको, जीआई निकालो। ए है तुम्हारा देखो 15, बी है 35, सी 45 होगा। 45 कैसे हो रहा है? सी 0 है। सी क्या है? 45 कैसे हो रहा है? एल एल इज 40। ओ मैम सॉरी मैम 0। एंड दिस इज योर 10। ठीक है, अब ये सब वैल्यू पुट करके जी आई का वैल्यू देखो क्या क्या आएगा। ম্যাম আগের পেজটা দেখান না। तब ओके ग्रीन सिग्नल आ रहा है, मतलब जो भी कैलकुलेट किए थे वी हैव टू टेक दैट वैल्यू ओनली। ओके इट इज नॉट एक्सीडिंग 040, सो ओके इट इज नॉट एक्सीडिंग 040। ओके ये वाला 0 है तो 0 तो था ही। ओके एंड दिस वन इज 10 अगेन नॉट एक्सीडिंग 0 to 20, मतलब डी का वैल्यू शुड लाई बिटवीन 0 to 20। सो ओके क्लियर? यस मैम। अब ग्रुप इंडेक्स क्या होगा? ये सब वैल्यू पुट कर देना है सिंपल। सी गेटिंग एज अ 7 अप्रोक्सीमेटली 7 आएगा देखो। मैम 6.5। यस मैम 6.5। No, 6.5। ओके तो हम लोग सपोज अप्रोक्सीमेटली 7 पकड़ रहे हैं फॉर इंटीजर, राउंड फिगर करना है राइट। अब इंटीजर लाना है तो इसलिए 7 में कन्वर्ट कर दिया। नाउ दूसरा मेथड क्या था? ग्राफिकल मेथड विच इज दिस वन। देखो अब यहाँ पे क्या बोला था? ग्राफिकल मेथड में होगा तुम्हारा जीआई। देखो जीआई भी है और क्या है? ट्रैफिक्स भी है। देखो लाइट ट्रैफिक, मीडियम ट्रैफिक, हेवी ट्रैफिक भी है। ठीक है, यहाँ पे दो पैरामीटर्स को यूज करके हमको थिकनेस निकालना है। ओके ग्राफिकल मेथड का यही है। अब लाइट किसको बोलते हैं, हेवी किसको बोलते हैं, मीडियम किसको बोलते हैं? ट्रैफिक। ओके लाइट ट्रैफिक किसको बोलते हैं? इफ द नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल पर डे। कमर्शियल व्हीकल किसको बोले थे? जिसका लैडेन वेट इज लेस ग्रेटर देन 3 टन, मतलब लोडेड वेट जो भी होगा जिस व्हीकल का अगर ग्रेटर देन 3 टन है उसको हम लोग बोलेंगे कमर्शियल व्हीकल। अगर वैसे टाइप का व्हीकल कितना बार जा रहा है पर डे में? 50 टाइम्स जा रहा है, देन दैट इज लाइट ट्रैफिक। ओके एंड इफ दैट इट लाइज बिटवीन 50 to 300 देन इट इज मीडियम। अगर 300 से ज्यादा जा रहा है दिस इज 300 सॉरी दिस इज हेवी ट्रैफिक। ओके एंड ये जो भी ट्रैफिक का वैल्यू है ये वाला है कंसिडरिंग बोथ डायरेक्शन, मतलब सिर्फ एक ही डायरेक्शन का काउंट नहीं कर रहे, दोनों डायरेक्शन का हम लोग काउंट कर रहे हैं। ओके टू लेन ही तो होता है राइट। तो अब उस तरफ भी जा रहा है, बजबज की तरफ भी जा रहा है और बजबज स्टेशन से बीबीआईटी की तरफ भी आ रहा है। टोटल हम लोग ट्रैफिक काउंट करके देख रहे हैं कि ये लाइट होगा ना मीडियम होगा ना हेवी होगा। ओके सो ये पता रहना चाहिए इसके लिए। एज आई सेड इट इज डिपेंडेंट ऑन ट्रैफिक। और दूसरा क्या पता रहना चाहिए? ग्रुप इंडेक्स। ग्रुप इंडेक्स का तो वही सेम मेथड, फॉर्मूला ABCD निकालो, GI निकालो, वही है। ठीक है तो दोनों मिला के अब हम ये वाला यहाँ से थिकनेस कैसे निकालेंगे। ओके नाउ इसके लिए लेट अस डिस्क्राइब दिस ग्राफ। ये जो ग्राफ है वो क्या क्या डिनोट करता है? देखो ये वाला क्या है? सिलेक्टेड मटेरियल दैट इज व्हाट
सब बेस ओनली। तो इस ग्राफ को यूज करके हमको किस चीज का थिकनेस पता चलेगा? ओनली द थिकनेस ऑफ सब बेस। ओके, तो यहाँ से हमको ये ग्राफ यूज करके वी विल डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ सब बेस। ए से डिनोट करते हैं इसको, सपोज ए बोलते हैं। बी कौन सा है? बी वाला देखो, ये वाला कहाँ पे? लाइट ट्रैफिक। ओके, तो ये बोला टोटल थिकनेस ऑफ सरफेस रोड एंड सब बेस। क्या क्या रहता है? सरफेस रोड रहता है, फिर बेस, फिर सब बेस रहता है। ठीक है, तो टोटल थिकनेस तुम्हारा कितना है? बी से पता चलेगा फॉर लाइट ट्रैफिक। ओके, सिमिलरली सी कौन सा है? ये वाला, तो ये वाला मीडियम ट्रैफिक, वही है टोटल थिकनेस फॉर मीडियम ट्रैफिक। अगर मीडियम इसके रेंज में अगर व्हीकल जाएगा तो उसके लिए टोटल थिकनेस कितना देना चाहिए फॉर पर्टिकुलर जीआई। तो ये वाला ग्राफ यूज करके हमको मिलेगा। और डी वाला क्या है? हेवी ट्रैफिक के लिए। इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, हम जल्दी जल्दी कर रहे, टाइम चला रहा, 5 मिनट्स है। एंड व्हाट इज ई? देखो ये सब बेस मिल गया, यहाँ से क्या मिला? ये वाला इंडिविजुअल सब बेस के लिए है। ये बी सी डी क्या है? दिस इज द टोटल थिकनेस, राइट? टोटल थिकनेस हमको यहाँ से मिल जाएगा, मतलब सरफेस बेस एंड सब बेस तीनों मिलाकर टोटल थिकनेस यहाँ से। अगर हेवी ट्रैफिक है तो ये, मीडियम है तो ये, लाइट है तो डी कर्व से। ठीक है, अब आया बचा क्या? सब बेस हो गया, टोटल हो गया, बचा बेस, राइट? बेस का लिए ये वाला ट्रैफिक, ये वाला कर्व वी हैव टू यूज। ओके, अब सेम प्रॉब्लम जो अभी सॉल्व किए हम। ओके, सेम प्रॉब्लम दिया है, तो बोला है डिजाइन द फ्लेक्सिबल पेवमेंट ओके यूजिंग ग्रुप इंडेक्स मेथड। एंड क्या और एक डाटा क्या चाहिए था हमको? यहाँ पे ट्रैफिक चाहिए। तो ट्रैफिक बोलो कितना है? देखो इतना कमर्शियल व्हीकल्स पर डे, इतना सीवीपीडी पर डे, पर डायरेक्शन इज 250। तो हम लोग को टोटल ट्रैफिक कितना होगा? टोटल ट्रैफिक ये है, एक डायरेक्शन से 250 आएगा, तो दोनों डायरेक्शन से टोटल ट्रैफिक कितना आएगा? अगर हाँ कितना आना चाहिए? बच से तुम्हारा बोला है कि पर डायरेक्शन है 250, वहां पे 2 लेन ट्रैफिक है, राइट? तो 2 लेन रोडवे है, तो टोटल थिकनेस टोटल कितना ट्रैफिक आएगा? 2 into 250, राइट? ये क्लियर है ना? यस। तो बोथ डायरेक्शन का कितना होगा? जस्ट ट्वाइस कर दो, इसका ट्वाइस कर दो, दैट इज 500 सीवीपीडी। तो हमको ये भी आया है। अब 500 सीवीपीडी किस में आ रहा है? देखो इट इज अबव 300, दैट मीन्स इट इज लाइन, इट इज फॉर हेवी ट्रैफिक। तो हमको कौन सा कर्व यूज करना पड़ेगा? ये डी कर्व यूज करना पड़ेगा। ओके, क्लियर है ये? हाँ मैम क्लियर है। ओके, तो इससे हमको वो ग्रुप इंडेक्स तो मिल गया, पिछले वाला सेम मेथड है। देखो सेम 7 कर रहे, ओनली वहाँ पे क्या नहीं था? ट्रैफिक काउंट नहीं था और थिकनेस नहीं बोला था। तो देखो ट्रैफिक काउंट इन बोथ डायरेक्शन इज 500 सीवीपीटी, सो विच इज हाई ट्रैफिक। अब आते हैं ग्राफ में। तो ग्राफ में हमको कौन सा कर्व यूज करना है? फर्स्ट फॉर गेटिंग टोटल थिकनेस एबीसीडी में, सॉरी बीसीडी में, बीसीडी इज फॉर टोटल थिकनेस, राइट? बीसीडी से हमको टोटल थिकनेस मिलेगा। तो अभी हमको हेवी ट्रैफिक बोला है, सो विच कर्व वी विल यूज? बी और सी, डी वाला, ठीक है। अब देखो कैसे प्लॉट करते हैं, ऐसा ग्राफ से कैसे हमको थिकनेस चाहिए। तो हमको ये वाला कर्व चाहिए, और जीआई कितना आया हम लोग का? 7 आया, मतलब समवेयर हियर, ठीक है? जीआई इज समवेयर हियर। अब इसका एक लाइन खींच दो, पूरा स्ट्रेट लाइन खींचो खींचो, सबको काटना है। ओके, सब कर्व को काटते काटते जाना है। अब यहाँ पे हम लोग स्टॉप कर दिए। तो डी कर्व से हमको क्या चाहिए? टोटल थिकनेस। तो देखो टोटल थिकनेस विल बी कितना होगा? अब यहाँ से नीचे जाओ, 45 और इसके बीच में समवेयर। तो हम लोग आई एस्टिमेट करके देख रहे कितना है? 46 सेंटीमीटर। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, अब क्या आएंगे हम लोग? जाएंगे ये वाला कर्व। देखो बेस हमको सब बेस चाहिए, तो सब बेस के लिए कौन सा बोले थे? कर्व ए बोले थे, राइट? तो सब बेस देखो कहाँ पे आ रहा है? तो ये जीआई 7 के लिए, और फॉर सब बेस ये वाला कर्व यूज करेंगे, तो इसका करस्पॉन्डिंग थिकनेस इज समवेयर हियर 16 सेंटीमीटर। ओके, अब सिमिलरली बचा क्या? टोटल हमको मिल गया, अब बेस सब बेस हमको मिल गया, बचा क्या? बेस, राइट? तो बेस के लिए भी हम निकाल लेंगे। सो इट इज लाइंग समवेयर हियर, सपोज दैट इज 8 सेंटीमीटर। ओके, अच्छा ये वाला तुम्हारा क्या है? दिस कर्व बेस तभी हम यूज करेंगे जब हम लोग सब बेस यूज नहीं करेंगे। ओके, so that additional thickness is this one, ये डिनोट करता है वो एडिशनल थिकनेस। ओके, मतलब कि इसमें देखो तीनों लोड है, तीनों तुम्हारा सब बेस सरफेस सब कुछ है, ठीक है? अब इसमें से हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है, जो भी सब बेस का ये जो भी वैल्यू आ रहा है वो नहीं पुट करके हम ये वाला पुट कर देंगे, तब का थिकनेस का वैल्यू कैसा रहेगा, ठीक है? सो दैट इज योर सी थिकनेस ऑफ एडिशनल रोड बेस
सब्स्टिट्यूट फॉर सब बेस, ओके, सब बेस के बदले में हम बेस देंगे, तब कितना होगा 8 सेंटीमीटर इन दिस केस, ओके। 1050 होगा। ओके, एक मिनट, ओके। देखो ओके टोटल पेवमेंट थिकनेस कितना आया था फ्रॉम ग्राफ, 46 आया था, 46 हाँ। ठीक है। सब बेस कितना है 16, ओके। अब देखो टोटल थिकनेस इज हाउ मच 46 सेंटीमीटर, राइट। पेवमेंट मतलब कितना है, सरफेस बेस सब बेस तीनों का मिलाकर टोटल थिकनेस है 46, ओके। सब बेस कितना है 16 बोला है, ठीक है। नाउ लेट अस एज्यूम सरफेस कोर्स एज 5 सेंटीमीटर, ये वाला एज्यूम किया है हम लोगों ने, ठीक है। तो कैन वी फाइंड दिस बेस कोर्स, दिस माइनस दिस करने से तो बेस कोर्स आ जाएगा ना। हाँ मैम। ये वाला ग्राफ से आया, ये भी ग्राफ से आया, ये हम एज्यूम किया, तो ये वाला बेस हो जाएगा देखो 25 सेंटीमीटर, ओके। तो ऐसे भी डिजाइन करना है। नाउ यहाँ पे क्या है, ये पेवमेंट विथ सब बेस, यहाँ पे सब बेस है। अब दूसरा केस में क्या होगा, पेवमेंट विथ एडिशनल रोड बेड विच सब्स्टिट्यूटेड फॉर सब बेस, मतलब दूसरा में तुम्हारा सब बेस को हटा के एक्स्ट्रा बेस देना है, ओके। सब बेस कितना था पहले में, देखो सब बेस 16 सेंटीमीटर था, अब ये सब बेस हटाएंगे हम, यहाँ पे भी बेस ही देंगे, एडिशनल बेस डाल देंगे, ये बेस तो रहेगा, एडिशनल बेस डाल देंगे, तो उसका थिकनेस क्या होगा, होगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, देखो थिकनेस सरफेस हम एज्यूम किए कितना 5 सेंटीमीटर, थिकनेस ऑफ बेस कितना कैलकुलेट किए थे पिछले उससे कैलकुलेशन से, देखो पिछले इससे कितना है 25 सेंटीमीटर, राइट। तो यहाँ पे पुट कर दो 25, ठीक है। और एडिशनल कितना था, देखो एडिशनल रोड सब, ये वाला कहाँ से आया था, एडिशनल का वैल्यू यहाँ से आया था, देखो एडिशनल का ये वाला आ रहा है 8, ओके। सो दैट इज 8 सेंटीमीटर। अब सब बेस हटा के हम बेस ही डाल देंगे, एडिशनल बेस का थिकनेस कितना है 8 सेंटीमीटर। सो अब टोटल थिकनेस क्या हो जाएगा, ऐड कर दो तीनों को, 5 + 25 + 8 कमिंग आउट टू बी 38 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे टोटल पेवमेंट थिकनेस भी आ गया, इंडिविजुअल थिकनेस भी आ गया। सो दिस इज फॉर ग्राफिकल मेथड, ठीक है, Yes, ओके। ma'am. देन दिस मच। तो थोड़ा कंफ्यूजन है तो पढ़ लेना लास्ट का मेथड, ठीक है, और डाउट होने से पूछना, ओके। जस्ट अ मिनट, ओके, जस्ट अ अरे मिनट। हाँ। आज बॉस स्टूडेंट आया 28। ओके ओके, थैंक यू, फिर यू मे लीव, सब लोग आ सकते हो, थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you.